ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਏ ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ। ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ। ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ। ਤਾਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 37 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਹੁਣੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਬਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ,
ਵੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਾਵੈ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਦੁੱਧ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਦਾਲ ਪਾਈਏ ਤੇ ਦਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਪਾਵੈ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਪਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਆ ਸਾਧਨ ਨੇ ਨਾ, ਦੋ ਹੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਸਾਧਨ ਨੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੇਤਰੂ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਤੂੰ ਪਾਵੇਂਗਾ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਣ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜੇ ਔਗਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਔਗਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ।
जे पाप पावांगे तो पाप निकलणगे, जे पुण्य पावांगे तो पुण्य निकलणगे। धर्म पावांगे तो धर्म निकलेगा, जे अधर्म पावांगे तो अधर्म निकलेगा। प्रेम पावांगे तो प्रेम निकलेगा, जे नफरत पावांगे तो नफरत निकलेगी। सो जो असी इन्हां साधना दे राही, अखां दे राही, कन्नां दे राही, आपां इउं कह लईए भी ये शरीर रूपी बर्तन दे ये दो मूँह ने। वैसे तो सतगुरु जी ने 9 गोलकां की गल की है, 9 दरवाजियां की गल की है, 9 दरवाजे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। ये मन के चलो भी बर्तन दे 2 मूँह ने, अखां ते कन। हुण जो असी इन्हां दे राही शरीर रूपी बर्तन च पावांगे वो असी कड्डांगे। जे इन्हां अखां दे राही असी धर्म पाया है शरीर दे विच ते धर्म निकलेगा। जे लिटरेचर असी धर्मी पढ़िया है तो साडे विचार धर्मी बन जाणगे, ते जे लिटरेचर गंद दा पढ़िया है, जे लिटरेचर असी इन्हां अखां दे राही माड़ा पढ़िया है तो विचार भी माड़े बनणगे। जे इन्हां अखां दे राही असी सच नूं वेखिए तो सच ही शरीर दे विचों निकलेगा, जे झूठ वेखिए तो फिर झूठ ही निकलेगा। ठीक उस ढंग दे नाल जे इन्हां कन्नां दे राही असी शरीर रूपी बर्तन दे विच धर्म पाया है तो धर्म निकलेगा, ते जे इन्हां कन्नां दे राही असी शरीर रूपी बर्तन दे विच अधर्म पाया है तो अधर्म निकलेगा। जे असी इन्हां कन्नां दे राही शरीर रूपी बर्तन दे विच गंद पाया है तो गंद निकलेगा। जे असी बाणी दे बोल पाए ने, शब्द पाए ने, तो फिर साडी जिंदगी दे विचों शरीर रूपी बर्तन दे विचों गुरु दे शब्द जिहड़े ने वो झलकारा मारनगे। सो मैं बेनती कर रहा सां भी सुनन दा साडी जिंदगी दे उत्ते एक बहुत बड़ा ते बड़ा गहरा असर पैंदा है। इसे करके तुसीं वेखो भी आपां जदों जपजी साहिब दी पावन बाणी नूं पढ़दे हां ते सतगुरु जी ने जपजी साहिब दी बाणी नूं प्रकरण दे मुताबक एक तरतीब देंदिया होया उन्होंने इत्थों तक पहुँचाया है, सचखंड वसै निरंकार, या अगे घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। सो सतगुरु जी गल आरंभ करते हैं, सोचे सोच ना होवे जे सोची लख वार तो। स्टैप दर स्टैप सतगुरु जी सानू इस मुकाम ते पहुँचाना चाहते हैं, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। हुण ये सतगुरु जी ने सानू जिहड़ा स्टैप दर स्टैप ये सानू सारा एक प्रोजैक्ट दिता जपजी साहिब दा, उहदे विच एक स्टैप आउंदा है सुणिया। आपां जदों सुने वालियां 4 पौड़ियां पढ़ते हैं, सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुने धर धवल आकाश, सुने दीप लो पाताल, सुने पोह न सकै काल, नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। उहदे विच एक स्टैप आउंदा सुनिया। हुण सुने तो बाद सतगुरु जी मन्ने की गल करते हैं, मन्ने की गत कही ना जाए। सो पहला सुनना जिहड़ा है वो बड़ा इंपोर्टेंट पार्ट है जिंदगी का। जिहड़ी गल नूं असीं सुनिया ही नहीं, तुसीं वेखो भी जिहड़ी गल नूं सुनिया ही नहीं उहनूं मन भी आपां किवें सकदे हां। सो मैं बेनती कर रहा सां भी सुनन दा साडी जिंदगी दे अंदर एक बड़ा इंपोर्टेंट पार्ट है। मनोविग्यानिकां दा ये मनना है कि जे किसी बच्चे नूं जन्म तो ही जदों बच्चे का जन्म हुंदा है उसनूं किसी ऐसे थां दे उत्ते रखिया जावे, ऐसी परवरिश दे विच, ऐसे माहौल दे विच, ऐसे वातावरण दे विच उस बच्चे नूं रखिया जावे जिथे उहदियां कन्नां दे विच कोई भी आवाज़ जिहड़ी है वो ना पवे, किसी भी प्रकार की आवाज़ उहदियां कन्नां दे विच ना पवे। ते मनोविग्यानिकां दा, माहरां दा ये मनना है
कि जिवें जिवें वो बच्चा वड्डा होवेगा उहदे शरीर का विकास तो होवेगा पर ना तो उहदे कोल बोलण की शक्ति रहेगी तो ना उहदे कोल सुनन की शक्ति रहेगी। क्यों? क्योंकि शुरू तो ही उहदियां कन्नां दे विच कोई बोल पए नहीं, ते जे उहदियां कन्नां दे विच बोल नहीं पए तो फिर उहदे अंदरों बोल निकल भी नहीं सकते। शब्द पया नहीं ना उहदियां कन्नां दे विच ते शब्द फिर वो बोल भी नहीं सकता। उहदियां कन्नां दे राही शब्द उहदे अंदर जावेगा ते तां उहदे अंदरों उहदी जुबान जिहड़ी है वो शब्द कवेगी, बोलेगी। आपां वेखदे हां भी माँ जिहड़ी है ना वो पहलां बच्चे नूं ये गल बार बार कहती है, उहदियां कन्नां दे विच वो शब्द पाउंदी है, वो शब्द पाउंदी है। तुसी वेखो भी जदों बच्चे का जन्म हुंदा है तो उहदे बड़े टेस्ट जिहड़े ने वो कीते जांदे ने डॉक्टरां दे वल्लों, ते उन्हां टैसटां दे विचों डॉक्टर सानूं ये भी सुजैशन करते हैं, ये भी एडवाइज़ करते हैं भी इहदा हीयरिंग टैसट भी जिहड़ा है वो जरूर करवाओ। हीयरिंग टैसट तो ये पता लग जाए भी ये बच्चा सुन भी पा रहा कि नहीं सुन पा रहा। सो डॉक्टर्स भी सानू जिहड़े ने वो ये गल की एडवाइज़ करते हैं। मैं बेनती कर रहा सी भी माँ पहला बच्चे दे कन्नां दे विच वो शब्द पाउंदी है ते फिर बच्चे दे अंदर जदों वो शब्द बन जाता है, जदों वो शब्द पक जाता है, फिर वो बच्चा जदों बोलना सीखता है वो फिर वो शब्द बाहर कढ़दा है। माँ बार बार उन्होंने कहती है बेटा बोल माँ, बोल पापा। फिर जदों वो बोलना सीख जाता है फिर उहदे अंदर जो पाया होया शब्द है वो बाहर निकलता है, तो बच्चा पहली बार ची माँ शब्द बोलता है। भावें वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता पर बोलण की वो कोशिश करता है, क्योंकि माँ ने वो कन्नां च पा दिता है। एक होर उदाहरण लैके आपां गल समझ लीए, फिर आपां इस पौड़ी नूं विचारन का यतन करांगे। वेखो जदों बोरिंग हुंदी है ना, पानी वाले बोर आपां घरां दे विच कराउने आ। हुण जदों बोर कर लिया जाता है ना, बोर कर लिया जाता है तो बोरिंग करन वाला जिहड़ा मिस्त्री है वो सानू कहंदा भी 2-4 बाल्टियां पानी दियां भर के लैके आओ। हैरानी की बात है, आपां सवाल कर सकते हैं उस मिस्त्री नूं भी कमाल की बात है, असी बोर ही तां कराया भी असी धरती दे विचों पानी कढ़ सकीए, तुसीं साडे कोलों पानी मंगा रहे हो। उन्होंने पूछे भी पानी की करना है, वो कहेगा इस बोर दे विच पाउणा है, तो असीं कहांगे भी इस बोर दे विचों तां पानी कढ़न दे लई असीं इन्ना खर्चा कीता है, तुसीं कहंदे हो बाहरों पानी पाउणा है। जे बाहरों ही इस बोर दे विच पानी पाउणा है तो फिर इन्ना खर्चा करन दी की जरूरत सी? फिर की लोड़ सी 25-30 हज़ार रुपया लाउण दी? भी जे असीं बाहरों ही पानी इस बोर दे विच करके पाउणा है, फिर वो सानूं एक गल समझावेगा, ये गल कहेगा भी पानी इहदे विचों ही निकलेगा। जिहड़ा बोर तुसीं कराया है ना, जिहड़ा तुसीं 25-30 हज़ार रुपया खर्च किया, ये तुहाडा व्यर्थ नहीं जाएगा, पानी इहदे विचों निकलना है। पर इहदे विचों पानी कढ़न तो पहलां एक नियम है कि पहलां उपरों पानी इहदे विच पाउणा पवेगा। जदों पानी उपरों पावांगे वो एक लेयर बन जाएगी, एक प्रैशर बनेगा, तो फिर उस उपरले पानी पाउण दे नाल इहदी धरती दे विचों फिर वो पानी निकलेगा। भावें 10 साल कढ़दे रहो, 20 साल कढ़दे रहो, भावें 40 साल पानी कढ़दे रहो, वो पानी कंटीन्यू फिर निकलता रहना, निकलेगा इहदे विचों। पर शर्त यह है भी पहलां उपरों पानी पाउणा पवेगा। ठीक उस ढंग दे नाल पहलां साडियां कन्नां दे विच शब्द बोल पाउणे पैणगे ते फिर ही असीं बोलना सीख सकते हाँ, तां ही असीं बोल सकते हाँ। मैं पहलां भी आप जी दे नाल बेनती साझी कर दी भी माहरां दा इह मनना है भी जिस बच्चे ने सुनिया नहीं है ना अपनी जिंदगी दे विच, कोई शब्द कोई बोल सुनिया नहीं, वो बोल भी नहीं सकता, उहदी जुबान जिहड़ी है वो कुछ शब्द कह भी नहीं सकती। सो इन्ना साडी जिंदगी दे अंदर सुनन दा गहरा असर है।
हुण मसला ये खड़ा हो जाता भी सुनना की है, सुनन नूं भी बहुत कुछ है। तो सतगुरु जी ने अज सानू ये गल समझाउण दा यतन किया है भी सुनना तो तेरी जिंदगी का इंपोर्टेंट पार्ट है ही है, ये तो इंपोर्टेंट पार्ट है ही है, पर सुनना तू की है ये भी तेरे लिए बड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है, बड़ा जरूरी तो महत्वपूर्ण हो जाता है। सुनना तो तू है ही है, जे सुनेगा नहीं तो तू बोल नहीं पावेगा, ये तो महत्वपूर्ण तेरे लिए लाजमी है ही है। पर सुनना की है, गुरु ने सानू ये गल समझाई है। सो सतगुरु जी कहते हैं ए सरवणो मेरे हो सच है सुनने नो पठाए। गुरु अमरदास जी कहते हैं हे मेरे हो कन्नो, वेखो उस परमात्मा ने तुहानू थापिया ही तां है, पठाए दे अर्थ ने थापना, भेजना या लाउना, तुहानू शरीर दे नाल लाया ही तां है कि तुसी उस सच की सिफत सलाह नूं सुन सको, तुसी सच की सिफत सलाह नूं सुन सको। ये बड़ा इंपोर्टेंट पार्ट है। बंदा सुनता तो बहुत कुछ है, तुसी वेखो भी अज असीं सुनते तो हाँ कितना कुछ सुन रहे हैं, पर साडे सुनन दी समग्री दे विच सच की सिफत सलाह नहीं आई। मैं तो हैरान रह जाना, बंदा चुगली सुन सकता है, घंटियां बद्धी वो निंदिया सुन सकता है, घंटियां बद्धी अपनी वडियाई ते उस्तत दे बोल सुन सकता है, घंटियां बद्धी वो गंदे गाने सुन सकता है, लच्चर गीत सुन सकता है। अज साडी नौजवानी दे उत्ते इन्हां दा बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पिया है। जे अज साडी नौजवानी नशियां दे विच है, अज साडी नौजवानी एक फोके हंकार दे विच है, अज साडी नौजवानी ने जे उन्होंने अपनी असल जिंदगी नूं छड्ड के अज फुकरापंती नूं अपना लिया है, तो फिर खिमा करना इस दे विच साडियां उन्हां गायकां दा बड़ा वड्डा एक हथ है जिन्हां ने साडी नौजवानी नूं इहो जिहा कुछ सुनाया है। अज साडी नौजवानी नूं इहो जिहा कुछ परोसिया गया है। मैं बेनती कर से भी बंदा सुनता बहुत कुछ है, पर जे सुनता नहीं तो रब्बी सिफत सलाह, सुनता नहीं तो सच। तो पावन बाणी ने बड़ी प्यारी गल कही है। सतगुरु जी उस मालक दे अगे एक अरदास करते हैं। वैसे तो बाणी ने यह भी साढ़े सामने बयान किया है। सतगुरु जी कहते ने क्या सुनेंदो कूड़ वंजन पवन झुलारिया, नानक सुनियर ते परवान, जो सुनेंदे सच धनी। सतगुरु जी कह लगे झूठ नूं सुन रहा। मेरे नौजवान वीरो, बाणी दे इन्हां शब्दां नूं ध्यान दे नाल सुनियो, समझियो। जिद्दण सानू बाणी दे ये शब्द समझ आ गए ना, उदण असी किसी लच्चर कलाकार दियां गंदियां गीतां नूं नहीं सुनांगे। उदण साडे घर दा, साडी कार दा ते साडे मोबाइलां दा शंगार किसी अखोती मूसे वाले कलाकार दे गीत नहीं बनणगे। उदण साडे घर दा, साडे मोबाइल दा, साडी कार दा शंगार बाबे नानक दी बाणी बनेगी। अज साडे नौजवानां दे मोबाइलां च, उन्हां दे घरां च, उन्हां दियां कारां च अज ये लच्चर गायक जिहड़े ने वो प्रभाव पा के बैठे ने। किन्ने गायक ने अज साडे नौजवानों नूं पुछ के वेखो। मैं अक्सर बेनती करया करदा भी पिछे जे एक वीडियो वायरल हुई सी, बठिंडे दे मित्तल मॉल दे विच एक रिपोर्टर वीर गया तो उन्हें उत्थे नौजवानों नूं पुछया भी नौजवानों ये 5 शहीदां दे नाम दसो, तो किसी भी नौजवान ने 5 शहीदां दे नाम नहीं दसे।
तो अगों फिर रिपोर्टर भी सवाल करता है भी चलो 5 कलाकारां दे नाम दसो, सिंगरां दे नाम दसो। तो फिर साडे नौजवान दसदे ने बड़े मान दे नाल सिद्धू मूसेवाला, आ दलजीत दोसांझ, आ हनी सिंह, आ फलाना टमकाना। इहदा कारण की है? इहदा कारण यह भी असी उन्हां नूं अपने रोल मॉडल मान लिया। तो मैं एक होर बेनती करा, 47 तो लैके अज तक साडी नस्लकुशी हुंदी आ रही है। 47 दे विच सरीरिक फिजिकल तौर पर बड़ी वड्डी नस्लकुशी हुई, 84 दे विच फिजिकल तौर पर बड़ी नस्लकुशी हुई वड्डी। तो नस्लकुशी जिहड़ी है वो फिजिकल तौर पर तो ये हो गई, अज जिहड़ी मानसिक तौर पर साडी नस्लकुशी की जा रही है, इस पासे साडा ध्यान ही नहीं जा रहा। बड़े वड्डे पद्धर ते इहो जिहा मसाला, इहो जी समग्री साडे नौजवानों नूं पेश करके साडी नस्लकुशी जिहड़ी है वो की गई है। मानसिक तौर पर नस्लकुशी, साडी सोचण शक्ति नूं खत्म कर दिता, सानू उलझा दिता लच्चर गीतां वाले पासे, सानू उलझा दिता उन्होंने गंद वाले पासे, सानू उलझा दिता उन्होंने हीर ते रांझे वाले पासे, सानू उलझा दिता उन्होंने हथियारां वाले पासे, सानू उलझा दिता उन्होंने नशियां वाले पासे। साडी सोचण शक्ति की नस्लकुशी उन्होंने कर दी ताकि असी कौमीयत के बारे, कौम के बारे, पंजाब के बारे कुछ सोच ही ना सकी। असी सिक्खी दी विचार नूं अपनियां परिवारां दे विच असी लैके ही ना आ सकीए। तुसी वेखो भी किवें किवें दे प्रोग्राम साडे सामने रखे गए। खिमा करना, अज तां यूनीवर्सिटी कॉलेजां दे विच भी सभ्याचार दे नां दे उत्ते जिन्ना गंद पाया जा रहा, जिहड़ा वो साडी नौजवानी दी नस्लकुशी करन दे लई वो एक पक्ष है। ते कल्ला ये नहीं, तुसी अज वेखो भी किहो जे प्रोग्राम, एक प्रोग्राम हुंदा है कंटीनी मंडीर, हुण कॉलेजां यूनीवर्सिटियां दे विच जाके वो लोग किवें साडे नौजवानों की नस्लकुशी कर रहे हैं, ये साडे लई सोचण दा विशा है। मैं बेनती कर रहा सी भी सतगुरु दे जे ये बोल सानू समझ लग गए ना, क्या सुनेंदो कूड़ वंजन पवन झुलारिया, नानक सुनियर ते प्रवान जो सुनेंदे सच धनी। उदण साडे नौजवानों दे रोल मॉडल मूसेवाले वर्गे नहीं, बल्कि सरदार हरि सिंह नलवे वर्गे होणगे। उदण साडी नौजवानी दे रोल मॉडल ये योजो ते पोपो नहीं, उदण साडी नौजवानी दे रोल मॉडल होणगे सरदार बघेल सिंह वर्गे, भाई तारू सिंह वर्गे। अज सभ्याचार दे नां दे उत्ते जिन्ना जहर साडी नौजवानी नूं दिता जा रहा, ते जिस पद्धर ते साडी मानसिक नस्लकुशी की जा रही है, खिमा करना वड्डियां वड्डियां यूनीवर्सिटियां दे वाइस चांसलर भी जिहड़े ने, वड्डे वड्डे प्रोफैसर भी जिहड़े ने, वो इस गल दे वल्लों मौन धार के बैठे ने, वो चुप करके बैठे ने, ते वो अगले साडी मानसिक नस्लकुशी जिहड़ी है वो हौली हौली अपने अपने ढंग दे नाल कर रहे ने। मैं बेनती कर रहा सा भी सतगुरु जी दे जे बोल सानू पता लग जाण, नानक सुनियर ते प्रवान जो सुनेंदे सच धनी। ते गुरु साहिब जी ने बाणी दे विच एक अरदास की उस मालक दे चरनां दे विच, काश मेरे नौजवानों वीरो इन्हां कलाकारां दी गिरफत दे विचों बाहर निकल के तुसी भी गुरु दे कोल आके गुरु वाले बन के ये अरदास कर सको जिहड़ी अरदास गुरु ने कीती है। मैं कहना भी साडी सिੱਖੀ ਨੂੰ परनाया होया सिख कौम दे विच जन्म लैण वाला हर एक नौजवान हर एक भावें वो बच्ची है तो भावें बच्चा है, वो ये अरदास जरूर करे। वो किहड़ी अरदास है? मेरे मोहन श्रवणी यह ना सुनाए, साकत गीत नाद धुन गावत बोलत बोल अजाएं। वो ये अरदास करया करो तो इस अरदास के उत्ते चलण का यतन करो कि हे मेरे मालक जी मेरे कन्नां नूं वो बोल ना सुनाई, वो गंदे गीत ना सुनाई, वो लच्चर गीत जेड़े ने, वो गाने जेड़े ने मेरे कन्नां दे विच ना पैण, जेड़े मैनूं सच दे नालों तोड़ देण, जेड़े मैनूं सिद्धांतां दे नालों तोड़ देण,
ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਮਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਕੇ ਨਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਖੱਲਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। खैर सतगुरु जी कहते हैं ए सरवणो मेरियो सच है सुनने नो पठाए, हे मेरियो कन्नो तुहानू उस मालक ने सच सुनने दे लई लाया है, पैदा किया है, बनाया है। सच है सुनने नो पठाए शरीर लाए, तुहानू शरीर दे नाल लाए इस करके भी तुसी सिफत सलाह नू सुनो। सुनो सत बाणी, उस परमात्मा की सिफत सलाह की बाणी नू सुनो। तो सतगुरु जी कहन लगे जित सुनी मन तन हरिया होआ, रसना रस समाणी। अच्छा इस सिफत सलाह नू सुन के ना तुहाडा मन भी हरिया हो जाना ते तन भी आनंद भरपूर हो जाना। मन तन हरिया, तुसीं देखो भी गंदियां गीतां ने, गंदियां गाणियां ने, इन्हां कलाकारां ने जो सानू सुनाया वो सुन के साडा जीवन जिहड़ा सी वो चिंताग्रस्त हो गया, तनावपूर्ण बन गया। वो जो उन्होंने साडे सामने पेश किया, जो सानू सुनाया, हुण जे वो सानू प्राप्त नहीं होया तो असी चिंता दे विच चले गए, असी तनाव दे विच चले गए, दुखी हो गए। पर सतगुरु जी कहन लगे जे सिफत सलाह की बाणी सुनोगे ना, इन्हें तुहाडे मन ते तन नू खेड़ा दे देना है, हरिया कर देना है, आनंद दे देना है। रसना रस समाणी ते तुहाडी जुबान दे उत्ते भी रस आवेगा। अज जुबान दे उत्ते वो गंदे गाने ने, अज जुबान दे उत्ते साडियां ते गालां ने, अज साडी जुबान दे उत्ते बहुत कुछ कूड़ है। पर जिदन असी सुनिया, मैं पहला बेनती की भी जो भांडे विच पावांगे वो असी कढ लेना है। जे असी सुनांगे चंगा तो असी बोलांगे भी चंगा, जे असी सुने ही माड़ा है तो जुबान ने भी फिर माड़ा ही बोलना है। सो सतगुरु जी कहते हैं रसना रस समाणी, सच अलख विडाणी, ताकि गत कही ना जाए। वो जिहड़ा परमात्मा सदा स्थिर रहन वाला है, वो अलख है, वो आश्चर्य है, विडान है, उहदी अवस्था नूं बयान नहीं किया जा सकता। हाँ उहदे गुणां नूं सुन के गा के अपनी जिंदगी दे अंदर आनंद जरूर माणिया जा सकता है। तो अखीर ते फिर सतगुरु जी सानूं याद दिवाउंदे ने, कह नानक अमृत नाम सुनो। नानक ये गल आखदा है वो परमात्मा की सिफत सलाह सुनो जिन्हें तुहाडे जीवन नूं अमृत बना देना है, जिन्हें तुहाडे जीवन के अंदर आनंद पैदा कर देना है। पवित्र होवो ते इस शरीर नूं, अपनी जिंदगी नूं, अपने विचारां नूं पवित्र कर लवो। सच है सुनने नूं पठाए, ताकि उस परमात्मा ने तुहानूं बनाया ही इस करके तुसी सच्चे की सिफत सलाह सुन सको। उस परमात्मा दे गुणां नूं अपने जीवन के अंदर सुन के तुसी ढाल सको। सो भागां वालिओ, आओ गुरु कृपा करे असी गुरु के मुताबिक सुनना सिख जाइए। अज नौजवानी दियां चरनां दे विच ये तरला है। आओ इन्हां गंदियां गायकां नूं, गंदियां गीतां नूं, गंदियां गाणियां नूं छड्ड के असी गुरु की बाणी नूं सुनन दा यतन करिए, ताकि साडे जीवन के अंदर भी सच आ जाए, साडी जुबान के अंदर भी गुरु की बाणी का वो आनंद आ जाए। असी गुरु के दर ते प्रवान हो सकीए, साडे भी हो सकण ये लोग सुखीए, परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले, भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।